Welcome to Ediola. Today we are going to begin chapter number 15 for standard 10 gseb. The heading of the chapter is economic development. So what we are going to study in this particular chapter is about the economy and the development of the economy. कि economy की development होती कैसे है and what all factors are responsible for a developing economy. So let's begin with the chapter. We will first understand the meaning of economic development कि ये economic development exactly होता क्या है. So constant increase in national income of a country. Economic development हुआ ये हमको कैसे पता चलेगा कि if someone says that there is constant increase in national income. अब national income क्या होता है, पूरे nation का जो income होता है that is known as national income of a country. तो अगर उसमें increase हो रहा है then we can say economy हमारी जो है वो डेवलप कर रही है. द सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री. अब ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी. देन इफ per capita income is increasing in our country then also we can say that economic development हो रहा है. Then the third point is change in lifestyle. थर्ड पॉइंट इज चेंज इन लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, चेंज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल. मतलब पहले लोग कैसे रहते थे, दे यूज टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, राइट. एंड अब लोग कैसे रह रहे हैं दैट थिंग, उसमें जो चेंज आया है, चेंज इन पीपल्स लाइफ स्टाइल, वो क्यों आया है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्योंकि लोगों के पास जब पैसे आएंगे देन दे कैन लिव अ बेटर लाइफ, राइट. Then they can change their living standard. So directly or indirectly it is related to whole economic development. So we are going to study the three definition, that is national income क्या होता है, then second is per capita income क्या होता है, and also the GDP. ये GDP क्या होता है, that all things we are going to study next. Now what is national income? नेशनल इनकम क्या होता है? इट इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. एज आई सेड बिफोर, पूरे कंट्री का जितने भी लोग जितना भी पैसा कमाते हैं उसका पूरा सम टोटल वो होता है नेशनल इनकम. हम सब इंडिविजुअल का इनकम को मिक्सअप कर दिया जाए, टोटल कर दिया जाए तो वो हो जाता है हमारे इंडिया का इनकम. इट इज नोन एज आवर नेशनल इनकम. देन सेकेंड थिंग वी हैव इज पर कैपिटा इनकम. अब ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है, तो इसकी एक फॉर्मूला है, टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन. अगर किसी को पर कैपिटा इनकम फाइंड करना है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है, देन व्हाट वी नीड टू डू इज टोटल इनकम, पूरे इंडिया की जितनी भी टोटल इनकम है उसको जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट पर कैपिटा इनकम. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पर कैपिटा मतलब एक इंसान कितना, एक इंसान के पास कितने पैसे है दैट वी कैन get from this per capita income. के एक इंसान के पास how much money is there. So the formula is total income divided by population. Then the third thing we have is living standard. अब ये living standard क्या होता है, that is as I said before, living standard जब लो रहता है लोगों का then उसके पास जो facilities होती है तब वो लो हो जाती है. मतलब जो खाने पीने की जो basic facilities है वो भी लो रहती है. शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, ये सारी चीज़ें लो रहती है इन द लो लिविंग स्टैंडर्ड. एंड इफ़ अ पर्सन इज लिविंग इन अ हाई लिविंग स्टैंडर्ड देन जो फैसिलिटीज़ होती है वो उसकी इंक्रीज हो जाती है. जो क्लॉथ्स वो पहनते हैं वो ब्रांडेड हो जाते हैं, जो फूड वो कंज्यूम करते हैं वो भी अच्छा हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिविंग स्टैंडर्ड. द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज economic progress and economic development. The difference between economic progress and economic development we are going to see. Now what is national income of India? The GDP. National income, GDP, gross domestic product of India was 87,36,039 crores in 2011 and 12. This figure you need to remember. और वो increase होके कहाँ पहुँच गया to 1,35,67,192 crores in 15 to 16. Here is the difference between economic development and economic progress. अभी economic development क्या होता है, सबसे पहले let's see economic development. Qualitative and economic progress is quantitative. Now qualitative का मतलब क्या होता है, let's understand the meaning of qualitative first. As the word says quality, qualitative
थोड़ा बहुत क्वालिटी से मिलता जुलता है. सो व्हाट इट इंक्लूड्स कि पूरा क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है उसमें, प्लस सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको बोलते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है, सारी चीज़ों की क्वालिटी इट इज़ इंक्रीजिंग, प्लस जो सोशल वेलफेयर है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. एंड ये क्वांटिटेटिव नहीं है क्योंकि हम सोशल वेलफेयर को गिन नहीं सकते कि सोशल वेलफेयर 1% हुआ, 2% हुआ. सो इट इज़ क्वालिटेटिव, क्वालिटी है इसमें, इसके लिए. एंड most important, it includes social welfare, whereas economic progress don't include social welfare, so we can count the numbers, so it is quantitative. So this is the main difference. The second is economic development is the first stage, whereas economic progress तभी हो सकता है when economic development is already done. Economic development अगर हो चुका है then you can move towards the economic progress. पर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है देन नो वन कैन से दैट हमको इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो वेरी फर्स्ट स्टेज इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा देन एंड देन ओनली द नेक्स्ट स्टेप कम्स, दैट इज इकोनॉमिक प्रोग्रेस. द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कौन सा प्रोडक्शन? दैट इज गिवन इन योर बुक, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. अब ये क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज ऑफ बेटर फर्टिलाइजर, बिकॉज ऑफ हाइब्रिड सीड्स एंड ऑल दोज थिंग्स. सो इट लेड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन. प्लस ये एक टाइप से वी कैन से इट इज सोशल वेलफेयर. वेयर इज वी सी इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो क्या दिखाता है? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड. अब एग्रीकल्चर लैंड का इंक्रीज हुआ तभी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा. अगर लैंड नहीं है तो प्रोडक्शन कहाँ पे करने जाएंगे एग्रीकल्चर का? इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस कम्स अंडर इकोनॉमिक प्रोग्रेस. अगर हमको एग्रीकल्चर करना है देन वी कैन यूज़ द हाइब्रिड सीड, वी कैन यूज़ द बेटर फर्टिलाइजर, और फिर हम वो क्रॉप्स को निकाले, फिर मिक्स कल्टिवेशन, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. सो इट इज़ डेवलपमेंट. बट अगर हमको सही में ज़्यादा प्रोग्रेस चाहिए देन व्हाट वी नीड टू डू, हमको एग्रीकल्चर लैंड को भी इंक्रीज करना पड़ेगा. इससे तो काम चल रहा है लेकिन और काम दौड़ाना है, देन वी हैव टू डू इकोनॉमिक प्रोग्रेस. द फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री. अब डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री में डिफरेंस रहेगा. वी ऑल नो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, लेकिन इट इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री वी कैन से, राइट. सो वेयर इज यूएसए है और ऐसे सारी कंट्री है, दे आर ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज. अब उसको कुछ डेवलपमेंट का जरूरत नहीं है, दे आर वेरी एडवांस्ड. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये क्या होता है? इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री. जो हमारी नेशनल इनकम होती है ना, पूरे देश की इनकम, उसमें इंक्रीज कर देता है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज दिखाता है. वेयर एज इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या करता है? ये काम करता है किधर? जहाँ पे डेवलप कंट्रीज है, जो कंट्री एडवांस हो चुके हैं, जो कंट्री पूरे के पूरे डेवलप हो चुके हैं, देयर ओनली इकोनॉमिक प्रोग्रेस वर्क्स. इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप कंट्रीज. अब प्रोग्रेस कहाँ पे करेगा? देखो अगेन वी कैन रिलेट द सेकेंड पॉइंट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है हमेशा. कोई भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेप रहता है, देन ओनली यू कैन मूव टुवर्ड्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस. अब ये फोर्थ पॉइंट हम उससे कैसे रिलेट कर रहे हैं कि अगर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है देन प्रोग्रेस होगा ही नहीं. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो अगर जो कंट्री डेवलप कर रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, दे विल बी ऑब्वियसली इन द फर्स्ट स्टेज. सो इट विल लेड टू द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम. वेयर एज जो कंट्री ने अपना प्रोग्रेस कर लिया है, जो डेवलप हो गए हैं, वो फर्स्ट स्टेज से होते हुए ही सेकेंड स्टेज में आए होंगे, राइट. सो इसके लिए वो डेवलप हो गए. सो वी कैन से दैट इट इंक्रीजेज द नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमिक it increases the national income of a country, that is economic progress. So the next thing that we will be studying is about the features of developing economy. कि developing economy होती कैसी है और उसके features कौन कौन से होते हैं. The example of a developing economy, डेवलपिंग नेशन का, जो डेवलपिंग नेशन है उसकी इकोनॉमी हमेशा डेवलपिंग रहेगी. जैसे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है इट इज डेवलपिंग बिकॉज इंडिया इटसेल्फ इज अ डेवलपिंग कंट्री. So here we end the part 1 of this video, and part 2
In part 2, what we'll be discussing is features of developing economy, economic and non-economic activities, and structure of Indian economy. These three things we will be discussing briefly in the part 2. And this video for this chapter will be divided into many parts. So stay updated, stay tuned with us. If you like our video, please hit a like button and share and subscribe our videos. Thank you.